Good morning, students. This is Rashri Jain, and this is the online class for Maths of class 7th. So, students, till yesterday, we have completed exercise 5.1 in chapter 5 algebraic expressions. Okay. So, today we will start the new topic coefficients. What are coefficients? Okay. I will explain you it with two examples because it is not having such as a particular definition, and the definition in the book is little bit confusing and complicated. So I will explain it by example. First example is 7xy. Okay, so you can see 7xy is an algebraic expression as it is having constant 7, variables x and y, and the operation occurs is multiplication here. Okay, multiplication 7 into x into y, they are getting multiplied, hence the mathematical operation is multiplication, so it is an algebraic expression. And you know the algebraic expression in which only one term is there is called monomial, hence it is an monomial. So you can see only one term present here because no plus and minus sign are over there, no any term is present in this algebraic expressions, so hence it is an monomial. So whenever we have to write the coefficient of a particular factor in a term, किसी भी फैक्टर टर्म में हमें किसी फैक्टर का अगर कोफिशिएंट लिखना है तो उस फैक्टर से जो चीज़ें उस टर्म में मल्टीप्लाई हो रही हैं, चाहे वो कोई नंबर हो, कांस्टेंट हो या फिर कोई वेरिएबल हो, तो उस फैक्टर से जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है उस टर्म में, दैट इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव फैक्टर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे 7 का कोफिशिएंट लिखना है तो 7 एक फैक्टर है इसका, इस 7 से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स वाई. इस पर्टिकुलर टर्म में इस 7 से एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, सो एक्स वाई विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 7 इन दिस टर्म. ठीक है, यू कैन सी 3 फैक्टर्स आर देयर इन दिस टर्म, 7 एंड एक्स एंड y. सो हमें फैक्टर 7 का कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ 7. तो यू कैन सी एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो एक्स वाई विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 7. सेकेंड इज कोफिशिएंट ऑफ x. इफ़ वी वांट टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस टर्म, देन यू कैन सी x से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7y. ठीक है, x भी एक फैक्टर है इसका, तो इस फैक्टर का अगर हमें कोफिशिएंट लिखना है तो उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 7y, तो इट विल बी 7y. सो द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी 7y इन द गिवन मोनोमियल. ओके, और इन द गिवन टर्म. आपको ये x एंड y इस तरीके से नहीं लिखना है. ठीक है, बस आपको तो वो चीज़ें लिखनी है जो मल्टीप्लाई हो रही हैं गिवन फैक्टर से. थर्ड इज कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट ऑफ y के लिए यू कैन सी इन दिस मोनोमियल y से 7x मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 7x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y फॉर दिस पर्टिकुलर मोनोमियल. गेट इट? सो in this way you can write the coefficients of given factor in the particular term of an algebraic expression. It will be more clear to you with the second example. 9x square y plus 11z minus 6yz, it is also an algebraic expression. Okay, constants present in this algebraic expression are 9, 11 and minus 6. मैंने बताया था ना constant न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेते हैं, these are numbers. so कौन कौन से नंबर प्रेजेंट हैं इस algebraic expression में, 9, 11 and minus 6. so these three are constants present in this algebraic expression. Then if I talk about constant term, then you have already studied what is a constant term. The term in which no variable is present, only constant is there. जिस टर्म में सिर्फ कांस्टेंट होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट टर्म. इस एक्सप्रेशन में यू कैन सी तीनों ही टर्म्स में वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट टर्म में वेरिएबल इज़ एक्स स्क्वायर वाई, सेकेंड टर्म में द वेरिएबल इज़ जेड, थर्ड टर्म में वेरिएबल इज़ वाई जेड. ओके, सो ऐसी कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है इस algebraic एक्सप्रेशन में दैट डज नॉट कंटेन वेरिएबल. ठीक, सो नो कांस्टेंट टर्म विल बी देयर इन दिस algebraic एक्सप्रेशन. सो कांस्टेंट टर्म्स आर नन. ठीक है, आई थिंक now you can differentiate between constants and constant term. Okay, so come back to the coefficient. So if I talk about the third term, the third term is, I have already told you, whenever we write any term
constant, factors or coefficient in an algebraic expression, then we have to write its sign also with it. उसके साथ में साइन भी हमको लिखना है. सो टर्म क्या होगी, -6yz. ठीक है. इस टर्म में अगर मुझे y का कोफिशिएंट चाहिए तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस टर्म में y से मल्टीप्लाई हो रही हैं. You can see -6z, it is getting multiplied with y in this term. So the coefficient of y in third term, that is -6yz, will be -6z. Okay. क्या एक और सिंपल तरीका है, अगर आप चाहें तो जिस भी फैक्टर का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है उसके अलावा जो कुछ बचता है उस टर्म में, दैट विल बी इट्स कोफिशिएंट. y का कोफिशिएंट मुझे फाइंड करना है, y को मैंने हाइड कर दिया, क्या क्या बचा, -6z. ठीक है. इस y को अगर मैं हाइड कर देती हूँ तो क्या क्या बचा, -6z. सो -6z विल बी द कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस टर्म. Second is coefficient of z in 11z. 11z is the second term. You have to write coefficient of z. Coefficient of z के लिए क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म में z से, +11. ओके. सो +11 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ z इन 11z. या फिर z को जिसका कोफिशिएंट लिखना है उसको हमने हाइड कर दिया, क्या बचा, ओनली 11. सो कोफिशिएंट विल बी 11. इन फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट ऑफ 9x in 9x² y. यू कैन सी, मैंने क्या बताया, जिस फैक्टर का टर्म कोफिशिएंट हमको लिखना है उससे जो चीज़ें उस टर्म में मल्टीप्लाई हो रही हैं दे विल बी कोफिशिएंट. और जिस फैक्टर का टर्म लिखना है उसे आप हटा देंगे तो बाकी उस टर्म में जो कुछ भी बचा दैट विल बी कोफिशिएंट. यहाँ देखिए 9x² में 9 और x इन दोनों का कोफिशिएंट लिखना है तो इन दोनों को हटा दीजिए. 9 हटा दिया. ओके. x², 2 एक्सेस है यहाँ पर, 2x प्रेजेंट है. 2x x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर उसमें से एक x मैंने हटा दिया क्योंकि x का भी कोफिशिएंट चाहिए ना 9 के साथ साथ, तो 9x का कोफिशिएंट चाहिए, 9 तो मैंने हटा ही दिया, एक x और अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो सिर्फ एक x बचा, वो मैंने लिख दिया, और उसके साथ क्या बचा, y. तो xy विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 9x. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9x² y को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 9 × x × x × y. ओके. सो अगर मुझे 9x का कोफिशिएंट लिखना है तो 9x मैंने यहाँ से हटा दिया, क्या बचा, xy. सो xy विल बी द कोफिशिएंट ऑफ 9x in 9x² y. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, इन 9x² y अगेन आई हैव टू राइट द कोफिशिएंट ऑफ xy. यहाँ देखिए 9x² y को मैंने ओपन करके लिख दिया. मुझे xy का कोफिशिएंट चाहिए तो जिसका कोफिशिएंट चाहिए उसको मैंने हटा दिया. xy का कोफिशिएंट चाहिए, एक x हटा दिया और y हटा दिया, क्या बचा, 9x. सो 9x विल बी द कोफिशिएंट ऑफ xy इन 9x² y. सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म. आई होप now you can easily understand what are coefficients in given terms of a factor. Okay. Now move to exercise 5.2. question number 1 is write the coefficients of variables. ठीक है, आपको algebraic expression दिया है, इसमें सिर्फ variables के coefficient लिखने हैं आपको. ठीक है, यानी कि उन टर्म्स पे ध्यान देना है जिसमें वेरिएबल्स हैं. थर्ड टर्म में आप देख सकते हैं कोई वेरिएबल नहीं है, इट इज़ कांस्टेंट टर्म, तो इसमें तो कोफिशिएंट ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं बनता है. तो वेरिएबल जिस टर्म में प्रेजेंट है उस वेरिएबल्स के कांस्टेंट लिखने हैं. तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आप देख सकते हैं, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है x² और सेकंड टर्म में है x. तो फर्स्ट टर्म में वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखना है, यानी कि x² का कोफिशिएंट लिखना है. तो कोफिशिएंट ऑफ x² × x² विल बी 2, क्योंकि x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. सो ओनली 2 विल बी दी कोफिशिएंट. सेकेंड टर्म में वेरिएबल इज़ x, सो x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली 3/4, और कुछ नहीं है इस टर्म में. तो 3/4 विल बी दी कोफिशिएंट ऑफ x इन 3/4 x. x का कोफिशिएंट लिखना है, x को हाइड कर लिया तो बचा ओनली 3/4. सो 3/4 विल बी दी कोफिशिएंट ऑफ x in this term. This was A part. Now the C part is 25/4x² minus 13/2x plus 200. As the question says, you have to write the coefficient of variables only. इसमें भी थर्ड टर्म में आप देख सकते हैं no variable is present there, it is constant term. तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म में ही हम लोग क्या देखेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे वेरिएबल के. फर्स्ट में वेरिएबल है x². x² को
एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट देखना है, और जिसका कोफिशिएंट देखना होता है उसे हमें हाइड करना पड़ता है। तो क्या बचा 25/4। सो 25/4 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 25/4 एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन -13 2/x। सेकेंड टर्म में भी वेरिएबल है एक्स। अब इस एक्स का कोफिशिएंट अगर हमें इस टर्म में फाइंड करना है तो अगेन उसको हाइड कर दिया, कितना बचा ओनली -13/2। You have to write this constant with minus sign also. So -13/2 will be the coefficient of this x in this term. Now this was your classwork for today. Your homework is exercise 5.2 में question number 1 का B और D part you have to do in the homework, and you will submit me your homework on your respective days as per your sections. Okay, thank you.